are well known among all stakeholders for quality education, decent infrastructure and location. These institutions are rated and ranked very high amongst various regulatory bodies. Geeta Ratan International Business School is affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi and is approved by All India Council for Technical Education, Ministry of HRD, Government of India for Technical Programs and Bar Council of India for Law Programs. The institute is conducting programs like MBA, MBA International Business, BBA, both first and second shift, and BA LLB as well as BBA LLB. KIPS has been graded A by National Assessment and Accreditation Council in second cycle, rated A+ by State Fee Regulatory Committee or Fee Committee of Government of NCT of Delhi. It has been rated the highest rating A by Joint Inspection Committee of Government of NCT of Delhi and GGSIP University since 2013 till date, and also rated A by Academic Audit Cell of GGSIP University since 2011 till date. Ranked 93 Pan-India by the Lal Street Investment Journal 2017 and also achieved a 4-star ranking in IIC MOE ranking 2021. It has been ranked as 49th in top 150 B schools in India, 34th in top 100 private institutes in India, and 19th in top 20 North B schools for its MBA program by the Times Business School Survey 2022, and has rated number 2 Pan-India for its BBA program by Times Business School Survey in 2021, 19 and 18. Now coming on to the session for the day. The basic concept of meditation is that it is a practice that connects the mind and the body. Its purpose is to help increase both physical and mental peace and calm, which also helps you to learn how to live more fully in the present. Meditation can help you lower your stress levels, understand your pain, and improve your focus. With meditation, we can benefit our overall health by training in letting go of negative thoughts and encouraging more positive ones. To fulfill our intent today, we have with us Yoga Guru Abodh Srivastava. He is our President and Director at Saha Yoga Anubhuti, New Delhi, a yoga institute and education center affiliated with Vivekananda Yoga Anusandhan Sansthan, Bangalore. He has trained over 2,000 yoga instructors. Sir is an examiner and visiting faculty with Jain Vishwa Bharati Institute conducting yoga and meditation courses. Sir is also a visiting faculty at Vyasa Yoga Center, Singapore and Yoga Center in China. He conducts corporate yoga sessions and has been training all levels of corporate staff in various HR training programs. His daily routine consists of applying yoga principles in his day-to-day activities. Sir comes from a big joint family of yogis who live by the principles of yoga, naturopathy, Ayurveda and the Bhagavad Gita. Session of meditation. So before going ahead towards the main session, it is very important to know that what do you mean by meditation. अगर हम देखें तो हिंदी में हम कहते हैं ध्यान. तो ध्यान जो प्रक्रिया है या मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है, वहाँ पे मुख्य रूप से जो हमारा दैनिक जीवन में अगर हम इसको देखें, एक तो इसका आध्यात्मिक स्वरूप है और एक इसका स्वरूप है जो हम डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ के माध्यम से. तो देखिए जो भी चीज़ जब हम करते हैं, कई बार आपने देखा होगा किसी काम को जब हम करना शुरू करते हैं और हमारा ध्यान यानी कि जब हम उस चीज़ में इतना डूब जाते हैं तो कई बार हमको ये भी नहीं पता होता कि हाउ मच टाइम आई हैव पास्ड इन दिस पर्टिकुलर वर्क. द रीज़न इज कि वहाँ पे हमारा क्या जुड़ गया, जो माइंड है और बॉडी है, और ख़ास तौर से वो जो कहते हैं ना अंदर से एक आता है. तो आपने देखा होगा एक दो भाव हैं काम करने के, यहाँ पे जरूर थोड़ा इसको शेयर. एक है कर्मचारी भाव, वर्क में कहीं हम नौकरी करते हैं इसलिए करते हैं कि वही काम कर रहे हैं पैसा मिलेगा. एंड अनदर थिंग इज कर्म योग. कर्म योग क्या होता है कि इट इज आउट ऑफ इंटरेस्ट. आई एम इंटरेस्टेड टू डू दैट वर्क.
So whenever I am doing any work with the interest, जब हम इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो यानी कि उसमें सोल जुड़ गया, मजा इसलिए नहीं कर रहे हैं, पैसा तो मिलेगा, लेकिन वो पैसा मिलते हुए भी एक एनवायरनमेंट और एक जिस मिशन में काम कर रहे हैं, आज जैसे यहाँ बैठे हैं, एक तो यहाँ से ऑर्डर गया कि भाई आपको इस सेशन में आना, कुछ लोग ऐसे भी हैं, और एक ये है कि ओ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी that we are going to have this session of meditation. Generally, we are having different type of session, physics, chemistry, biology, management, all these things. Now we are having meditation session. तो दो तरह के लोग हैं, जिन्होंने मेडिटेशन के बारे में जो जानते हैं, तो वो तो सोच रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, देयर इज ए वे, आँख बंद करेंगे, सांस के ऊपर ध्यान देंगे, आज्ञा चक्र पे देखेंगे और फिर हम एनर्जी को फील करेंगे। दूसरे लोग ये हैं कि ये है क्या, और तीसरे लोग ये है कि अरे यार ये क्या है, तो अभी नहीं जाएंगे तो सर खत्म कब करें, अभी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अभी खत्म कब करें। और एक होता है कि ये बता क्या है, जब ये बता क्या रहने का जब इंटेंशन आ जाता है तो हमारा ये होता है कि उस समय हम इंटरेस्टेड होते हैं, ओपन हो जाते हैं। माय नेम इज अबोध। जब आप किसी भी चीज को एंटर करते हैं विथ इनोसेंस, अबोध भाव के साथ, तो आप उसको पूरा समझ पाते हैं, पूरा सीख पाते हैं। और जब आप सुबोध होकर सोचते हैं तो दैट लोगों में कुछ लोग ऐसे भी जो 40 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्टाइल है, अगर हम ये ओपन करके चलेंगे तो हमें इसमें इंटरेस्ट आएगा, तो हम अपने सेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे आज अपने पास कितना समय, 3:30 तक, ओके, क्या होगा 3 बजे, अभी अपने को 3:30 पे कंक्लूड करना है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज फिर हम ज़्यादा भूलना में नहीं जाते हैं, सीधे मेडिटेशन कि ये हमारे ध्यान का माने योग, वैसे तो योग परफेक्ट स्टाइल जिसमें चीज़ें क्या आती, पहली चीज़ है यम और नियम, डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ। पहला कि आपको डिसिप्लिन सीखना है। इफ यू आर ए डिसिप्लिन, यू आर गोइंग टुवर्ड्स योगा और यू आर गोइंग टुवर्ड्स meditation. The first step of meditation is discipline yourself. The second thing, yam niyam and then asana. Asana is not the only body bending. Asana is the bending. जैसे हम एंटर किया हमने इसी, अब यहीं से अनईजीनेस शुरू हो गई, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, मेडिटेशन में जा ही नहीं सकते। तो योग का स्टेप पहला यम नियम, फिर आसन, फिर जब आप इजी होकर बैठते हैं तो आपकी एनर्जी काम करना शुरू करती है, जिसको हम बोलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम करने की चीज नहीं, इट हैपेंस इफ यू आर इजी, यानी कि आपके जो चैनल्स हैं एनर्जी के वो ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाएंगे। और जैसे हम ये करते हैं, जैसे ही लाइक्स एंड डिसलाइक्स आती है यहाँ ब्लॉक आ जाता है, जैसे ही ब्लॉक आता है एनर्जी ब्लॉक होता है, जैसे एनर्जी ब्लॉक होती है प्राणायाम नहीं होता। और अगर जैसे ही हमारी एनर्जी ओपन है फिर आता है प्रत्याहार, मीन्स जो डिस्टर्बेंसेस हैं, बाहर की चीज़ें हैं। प्रत्याहार का एक्चुअल मीनिंग है कि नॉन अटैचमेंट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी भी आहार के प्रति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, वो कैसा भी है, इट कैन नॉट डिस्टर्ब हियर। इफ इट इज नॉट डिस्टर्बिंग, now you are ready for meditation. The first state of meditation is dharana. The sixth step of yoga is dharana. Dharana means now I will sit comfortably and whatever it is, chair है कि mat है कि whatever it is, जैसा बैठ। अब जब हम यहाँ पे बैठ गए तो अब हमने एफर्ट किया, शुरुआत की, एक ऑब्जेक्ट बनाया, लाइक हमने आपको ऑब्जेक्ट दे दिया ओम। अब आप ओम की तरफ अपने आप को फोकस करें। आप ओम को फोकस करते हैं लेकिन वहां पे आ रहा है कुछ और, आ रहा है कोई दूसरे कलर्स आ रहे हैं। तो ये जो चीजें आ रही हैं, इन चीजों को आपको करना ठीक है, इट कम्स, इट्स नेचुरल, बिकॉज इट्स नेचर। नेचर में सब कुछ है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, चिड़ियों की आवाज भी है, ये सब कुछ है। ये आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आपको अपने लक्ष्य की तरफ बराबर ध्यान देना।
अगर हम ये कब कर पाएंगे, जब उधर वही नीचे से हम काम करके आए। धारणा यानी कि उस ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस करना, और ध्यान का मतलब है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में, जब हम सब्जेक्ट को देखने लगे प्रॉपरली, कहते हैं ना बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, बहुत ध्यान से कब काम कर रहे होते हैं, जब हम उस चीज़ के प्रति बिल्कुल एकदम, जो भी चीज़ है उस समय कोई भी कुछ बोले ना, अभी खाना पीना कुछ नहीं, नो, क्योंकि वो एंजॉय कर रहा है, वो ध्यान चल रहा है उसमें, जो भी हम करना चाह रहे थे, जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे थे, एवरीथिंग इज नो प्रॉब्लम, हम एकदम फ्लो में जा रहे हैं, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। एंड देन लास्ट इज द समाधि, इज द 8th सिस्टम। तो एक्चुअली इतने छोटे समय में बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी हम कुछ अभ्यास के माध्यम से, जो लोग थोड़ा सा अपनी अपनी जगह पे थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को जितना सीधा कर सकते हैं, टेक अगर हटा लेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो अलर्टनेस आ जाएगी। यस, अपने जो साइड गियर्स का यूज़ करते हुए और कमर को सीधा रखने की कोशिश करें, और सबसे पहले प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अभी किसी ने कोई 1 घंटे पहले कोई बहुत ज़्यादा भोजन या कुछ 1 घंटे गैप हो चुके, और यहाँ थोड़ा सा एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हम लोग करेंगे। कपालभाति सुना है? कपालभाति ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं। बहुत ज़्यादा जोर से आपको नहीं, एक तो खासतौर से ऐसे नहीं करना, मतलब बिल्कुल लड़ाई नहीं, आराम से, ये रिलैक्स होना चाहिए। हल्का स्ट्रोक नेवल रीजन और फेस एकदम स्माइलिंग। चलिए स्टार्ट करिए। 30 स्ट्रोक्स काउंट करना है। हाथ ऐसे आ जाए, देखिए कोशिश करिए, स्ट्रेच करिए पूरा हाथ आ जाए। अगर आ जाता है ताली बजानी नहीं, बस इसको ऐसे करना है 5, 6, 10 बार कर, बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सब लोग आँख बंद कर लें, और ओम की महिमा हम बता रहे हैं, उसको आप लोग गीत के माध्यम से आप लोग उसको ध्यान से सुनें, और उसके बाद फिर विजुअलाइज करें। ओम सभी लोगों ने ओम तो देखा है कहीं ना कहीं, किसी को ओम से कोई प्रॉब्लम नहीं? कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए ओंकार की ध्वनि का पहले हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग उसको फॉलो करेंगे। पूरा सांस खाली करें, पूरा श्वास भर लें और गहराई के साथ धीरे से
फिर श्वास भरें, बोलें। Feel the vibrations of Omkar throughout the body. Let the vibrations settle down. Focus your mind towards between both the eyebrows. महिलाएं जहाँ पे बिंदी लगाती हैं वो स्थान, और पुरुष जहाँ पर टीका लगाते हैं वो स्थान। ध्यान केंद्रित करें। ओमकार, यह ओमकार है शब्द का मूल, यह ओमकार है शब्द का मूल। ओकार मध्यस्थान। ओम में 3 शब्द है, अ, उ और म। तो सबसे पहला है अ, आकार कहते हैं। यह आकार है शब्द का मूल। आंखें बंद रखेंगे, अपना ध्यान दोनों पाँव के बीच ओमकार के चित्र का अनुभव करेंगे कि ओम आपको दिखाई दे रहा है, और ओमकार की महिमा को ध्यान से सुनें। ओकार मध्यस्थान। हम लोग बोलते हैं मकार अंत है, यह जीवन ओंकार। अब ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद करेंगे। अ उ म के ध्यान के साथ पूरा श्वास खाली करें, पूरा श्वास भरें और हमारे साथ साथ चैंट करें। एक बार और। लास्ट राउंड। Feel the vibrations. Let the vibrations settle down, relaxing the body, calming down the mind. Focus yourself between both the eyebrows. Visualize the beautiful shining orange color of Omkar. यह ओंकार है सृष्टि का मूल, आकार ब्रह्म है। ओकार विष्णु
करता, ओकार पालनहार, मकार मुक्तिदाता, यह जीवन ओंकारा। दोनों भावों के बीच चमकते हुए ऑरेंज कलर के ओंकार की छवि को देखने का प्रयास करें। आंखें बंद। लॉर्ड शिवा के ध्यान में बैठे हुए आपने देखा होगा, लॉर्ड शिवा आंख बंद करके बिल्कुल ध्यानस्थ अवस्था में बैठते हैं। यहाँ पर हम नमः शिवाय के मंत्रोच्चारण से अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे और अपनी एनर्जी को मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र। मूलाधार चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी का जो निचला भाग होता है वहाँ स्टार्ट होता है, जहाँ पे एनर्जी पूरी तरीके से एक संगठित ढंग से होती है, सघन रूप से होती है, और उसको वहाँ पे से ऊपर उठाना होता है। तो उसमें ये बहुत अच्छा मंत्र है। एक बार हम बोलें फिर आप पीछे से बोलें। नमः शिवाय। Once again. Once again. लगातार अपना ध्यान दोनों भावों के बीच केंद्रित करते हुए ओंकार की छवि को देखने का प्रयास। अब आगे चयन करेंगे। नमः शिवाय। नमः शिवाय। लास्ट राउंड। नमः पूरी गहराई से चैंट करेंगे, बहुत धीरे नाभि से उठाने का प्रयास करेंगे और फिर शिवा चैंट करें सभी लोग। कंटिन्यूअसली
back and neck erect, eyes closed, vibrations of the sound throughout the body. Let the vibrations settle down. Keep visualize at the center of your forehead, Agya Chakra. You can feel the beautiful shining orange color spreading throughout the forehead. Orange color is the color of energy, and also it represents, it's a rich source of vitamin D. Visualize the beautiful shining Omkar at the center of your forehead, spreading the beautiful light, spreading in the complete forehead, covering the aura of your head. जो वलय बनता है, जो आभा मंडल है, आप अपने स्वयं के आभा मंडल के चारों ओर एक प्योर एनर्जी, शुद्ध एनर्जी, और ये जो पीला कलर धीरे धीरे एक वाइट लाइट में कन्वर्ट होता हुआ, प्योर वाइट लाइट, जैसे आप कभी फुल मून देखते हैं. नॉट द फोकसिंग, फोकसिंग इज द धारणा. ध्यान और meditation is defocusing. So whatever we have gained as energy came at the center of your forehead, which is known as Agya Chakra. और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड होती है जो सभी ग्लैंड्स को गाइड करती है कि किस प्रकार से किस ग्लैंड को कौन सा हार्मोन. और अगर हमारी मास्टर ग्लैंड रिलैक्स है, काम है, तो he will give the direction to secrete the different type of hormones. If the hormones are balanced in the body, our body will be relaxed, we will be happy, and we can do the work with full energy. So continuously focus between the eyebrows, and here you can see the beautiful bright white color spreading. Previously it was little orange, little hot, and now the bright white color spreading all around the forehead, covering the aura of your body. The process of purification, while we have chanted the A-Uma, we have chanted the Omkar, we have memorized the Lord Shiva, Om Namah Shiva. Our body getting into the process of detoxification, and you can feel all the channel of your energy open up, all the blocks and not open up. You are feeling energetic. Maintain it. To be in this state, once again, we will chant one Omkar, breathe out, breathe in. Everybody.
Feel the vibrations once again. Whole body becoming lighter, mind relaxed. Join your both the palms together, rub together, create the energy. When you are rubbing your palm, you are creating the energy because our palms are full of energy. Make the cup of your palms, palms का कप बनाएं और अपनी आंखों के चारों तरफ रखिए. आप देखिए जब आप अपने आंखों के चारों तरफ रखेंगे यू विल फील द कंप्लीट डार्कनेस. और अब आप बिल्कुल जहाँ पे आपने हथेलियाँ रखी हैं इसके बीचों बीच देखें तो आप कुछ कलर दिखाई दे रहा है. किसी को ब्लू कलर दिखाई देगा, किसी को ब्लैक, माने कलर में थोड़ा डार्कनेस हो. कीप फोकसिंग बिटवीन द आईब्रोज. और अब आप देखिए कि जैसे ही आप अपने दोनों हथेलियों को धीरे से साइड में स्लाइड करिए. साइड में स्लाइड करते ही आपको लगेगा आपके सेंटर में एक लाइट एकदम आई और वो ऑरेंज कलर होगा. देखिए आप सबको ऑरेंज कलर ही दिखाई देगा. यस यस. डाउन. अब आप अपने हेड को डाउन कर लें. हेड को डाउन करें, एकदम से ब्राइट लाइट ना देखें, नीचे की तरफ रखें, आंखें खोलें, ब्लिंक करें थोड़ा सा, आंखों को ब्लिंक करें धीरे धीरे और अब अपने हेड को उठाएं. लास्ट में जो ओपन करने के बाद ऑरेंज कलर किसको नहीं दिखाई देगा. और जब बंद किया तो उसमें ब्लैक या वो कलर था. हटाने के बाद एकदम ऑरेंज कलर नहीं है और आपको भी नहीं है. और बंद करने में ब्लैक आया बिल्कुल बढ़िया डार्कनेस कर जाता है. यानी कि सर के माइंड में मुझे लगता है काम फोकस के ऊपर डिपेंड करता है. तो अभी एक्चुअली क्या था जो एक तो जनरली हम लोग सिटिंग में करते हैं डेफिनेटली और वो पोस्टर में एक अलग अपना वो आता है. अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं. इस जो प्रोसेस हमने किया हमने यहाँ पे भी छोटे समय में आपको ये प्रोसेस किया कि आपकी एनर्जी को आपके आज्ञा चक्र पे ले जाएं और वाइब्रेशंस इसमें जो चैंटिंग्स हैं उसको पहले से हम थोड़ा और प्रिपेयर करते हैं. तो चैंटिंग्स को थोड़ा सा और हम लोग गहराई से जैसे मतलब एक्चुअली हम प्राणायाम करते हैं. तो जब ठीक से प्राणायाम हो जाता है तो फिर धीरे धीरे हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं. तो चूँकि थोड़ा सा टाइम का भी कंसर्न था तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा फास्टर लिया. और पोस्चर भी लोग चेयर्स पे तो चेयर्स पे थोड़ा सा उतना एकदम भाव बन नहीं पाता है. लेकिन किसी का कोई क्वेश्चन हो तो होता है इससे उसमें किसी को कोई डिफिकल्टी या जो हमने आँख बंद करके लगातार सबने आँख बंद करके रखी. अच्छा ओम किसको ओम दिखाई दिया? आँख बंद करते समय कुछ दिखाई दिया? किसी को दिखाई दिया? नहीं. जैसे चैंट करने में जैसे आप कभी ओम देखा होगा एकदम से पूरे टाइम तक टिकना तो बहुत मुश्किल है. लेकिन एक जैसे एक ग्लिम्स दिखाई दिया फिर डिसअपियर हो गया लाइक दैट थोड़ा बहुत हुआ. एक्चुअली यही है कि ये एक अभ्यास का विषय है और धीरे धीरे करके और चूँकि एकदम जब हम पहले से कर चुके हैं और या किसी ने कोई पैटर्न किया हुआ तो फिर हमारा ध्यान रहता है कि भाई हम उस पैटर्न को सर्च कर रहे होते हैं. इसलिए नया पैटर्न हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा कोई किसी की क्वेरी. हाँ वो एक्चुअली द स्टेट ऑफ माइंड हमारे स्टेट ऑफ माइंड एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. क्योंकि देखिए हमारे माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ हम ह्यूमन बीइंग में कुछ ना कुछ चलता रहता है. थिंकिंग चलती रहती है. तो
वो किस स्टेज में आप होते हैं, उस तरह के जो है वो क्वेश्चंस जो है वो हमारे माइंड में आते हैं। क्या रिप्रेजेंटेशन है सर डिफरेंट कलर्स? जैसे अगर ऑरेंज कलर आ रहा है तो ऑरेंज कलर जो है वो कलर ऑफ एनर्जी, यानी कि इस समय आपको इंस्पायरिंग चीज़ें, आपको ऑटोमेटिकली आपको इंस्पिरेशन हो रही है, बहुत आप अंदर से थोड़ा सा वो है, तो जैसे ब्लू या उस तरह का कलर आएगा, आपका ग्रे कलर आएगा, ब्लैकिश आएगा, थोड़ा सैडेड ग्रीन कलर। तो माने इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही काम और कूल कंडीशन में हैं आप, और उसमें आपकी जो वो है स्टेज, आपकी लगातार स्टेज है कि आप उसमें जैसे कहते हैं ना कि जब आप नेचर के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो उस समय आप किसी चीज़ का उत्पादन करने जा रहे हैं, उस समय किसी चीज़ को हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो उस तरह का किसी कोई प्रोजेक्ट हम चाहे बना रहे होंगे, उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो क्रिएटिविटी जो ग्रीन कलर है वो क्रिएटिविटी का द्योतक है, और ऑरेंज कलर जो है कि जो आपकी क्रिएटिविटी ऑलरेडी है उसको और एनहांस करता है, हॉट थोड़ा, जिसमें थोड़ी सी कहना चाहिए हल्का सा हाइपर, तो थोड़ा सा हाइपर लेवल आ जाता है। लेकिन ग्रीन तो बहुत ही बढ़िया हीलिंग भी है साथ में, क्योंकि हील करता है, ग्रीन कलर जो है वो हीलिंग करता है। ऑरेंज कलर एनर्जी कलर है, और ब्लू कलर है, और ये येलो कलर जो है, जैसा येलो कलर थोड़ा ऑरेंज से कम है, शांत है, कंपैरेटिवली शांत है। ऑरेंज कलर थोड़ा एग्रेसिव है, हाई एनर्जी। ब्लू कलर में थोड़ा सा डिप्रेशन है, ब्लू कलर में हल्का सा डिप्रेशन होता है, क्योंकि ब्लू कलर हो गया और ये ग्रे कलर हो गया, ये थोड़े से उसी साइड पर, इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा इनका उपयोग करते समय आसमानी टाइप का यूज़ करें, स्काई ब्लू करें, एकदम डार्क ब्लू। वाइट की तो खैर कोई वाइट बहुत अच्छा, वाइट टच में जो भी हो उसका एक अपना इफेक्ट है, बहुत अच्छा क्लियरिटी, और बहुत मतलब जनरली वाइट कलर आपको तभी दिखाई जब आपकी कंप्लेंट्स नहीं होगी ना, तभी वाइट कलर दिखाई देगा, नहीं तो वाइट कलर बहुत मुश्किल से दिखाई देगा, कंप्लेंट्स चलती रहती है। वाइट का मतलब ये है कि आई डोंट हैव द कंप्लेंट्स विद द पीपल्स और सराउंडिंग्स और ourselves, whatever it is, I am ready. सर डेली कितनी देर ये मेडिटेशन करें कि जिनका ब्लू कलर है वो ग्रीन में चेंज हो जाए, या ध्यान वाइट में जाए। हाँ ध्यान के लिए वैसे तो अगर रेगुलर कोर्स में अपने हेलो अभी सेशन में 30 मिनट्स बहुत होता है। हम मेडिटेशन की बात से 15 मिनट अगर हम जैसे थोड़ा सा प्रोसेस करके 15 मिनट जो आँख बंद करके करने वाला प्रोसेस है, अगर हम उसको करें, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहले हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करें, इसीलिए प्राणायाम को करने में बहुत प्रेशर नहीं। कपालभाति इज़ अ वेरी गुड क्लींजिंग टेक्निक, बहुत प्रेशर नहीं देना, हल्का साइनस को ओपन करने के लिए। एक्चुअली हमारा साइनस जितना क्लियर होगा उतना जो है साइनस की क्लियरिटी के लिए हमको डाइट और थिंकिंग दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना होता है। तो अगर 30 मिनट्स हम निकाल लें, 30 मिनट्स और थोड़ी सी इस तरीके की बेंडिंग्स कि जिसमें जो है बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, जो मसल्स हैं, तो और अगर आपका बॉडी में एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन है तो उसको पहले थोड़ा सा कोशिश करें, एक्टिवेट करने की कोशिश करें। थोड़ा सा योगासन प्राणायाम से मिला के 1 घंटे का समय लास्ट 15 मिनट्स में अगर हम करते हैं बहुत अच्छा है। गुरुजी, आज्ञा चक्र पे क्यों फोकस करना है? कैन वी हैव एनी अदर मैकेनिज्म ऑफ मेडिटेशन? बिकॉज़ इसमें थोड़ा स्ट्रेस आपको होल्डर होती है। उसमें ये रहता है क्योंकि आज हम डायरेक्ट आपको इसलिए ले रहे हैं, नहीं तो हम वैसे तो करते हैं कि जैसे
आप ब्रीथ कर रहे हैं तो जैसे ब्रीथ आउट करेंगे तो आपका नेवल रीजन अंदर जा रहा है। जब नेवल रीजन अंदर जा रहा है तो हम उसमें स्पाइन पे भी ले सकते हैं कि स्पाइन से एनर्जी जो है वो ऊपर जा रही है और फिर स्पाइन से नीचे जा रही है। तो स्पाइन की उससे क्लींजिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली। जो हमारा चैनल है जिसको कुंडलिनी बोलते हैं, तो कुंडलिनी का जो चैनल है वो हमारी जो स्पाइनल कॉलम है उसके बीचों बीच जो स्पाइनल कॉर्ड वही चैनल है उसके थ्रू। तो पहले हम उसमें जाते हैं और ये तो एकदम लास्ट में ऑटोमेटिकली जब हम वहाँ पे जाएं तो एक्चुअली यहाँ पे तो जाके ध्यान टिक जाता है। तो हमने सोचा कि आपको ओम का विजुअलाइजेशन केवल वहाँ पे कराया। अदरवाइज ये है कि इस पर तो ऑटोमेटिक आप करते करते यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक सेंसेशन भी आना शुरू हो जाता है। तो इसके पहले हम लोग इसीलिए कराते हैं प्राणिक एनर्जाइजेशन कराते हैं। तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ शोल्डर स्टिफनेस थोड़ा अच्छा फोकस नहीं जाता उधर। जान तो इसमें जैसे ये हमारा वैसे जो जनरल प्रोसेस है उसमें आपने देखा होगा, हमने ये वाली प्रैक्टिस कराई आपको। तो इसमें जनरली एक तो ये मूवमेंट सर्वाइकल, एक्चुअली सर्वाइकल की ओपनिंग बिफोर मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो उसमें हम लोगों के पहले तो या तो जहाँ पोजीशन होती है रीढ़ के व्यायाम करा देते हैं, जैसे रीढ़ की ट्विस्टिंग है, शोल्डर की ट्विस्टिंग है, नेक की ट्विस्टिंग है। तो उससे पहले इसको खोलना चाहिए। इसी के पहले थोड़ी सी 10-15 मिनट की प्रैक्टिस के बाद आप मेडिटेशन में डायरेक्ट गए हम लोग। तो इसलिए दैट प्रोसेस में हो सकता है जिनकी स्टिफनेस है वो फील होती है, इसको पहले ख़त्म करना होता है। तो अच्छा रहता है कि हम हमेशा कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम करके फिर मेडिटेशन शुड बी द लास्ट आफ्टर प्राणायाम। सबसे पहले अगर आप कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज योर डिसिप्लिन कि हम उठ गए, फिर हमें जो भी पानी या अपना मोशन मशीन में जाना है वो करा, एंड देन फिर योगासन। योगासन का मतलब ये है कि हमने अपनी बॉडी के जो मसल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, उनको उन लेवल तक रिलैक्स किया कि रिलैक्सेशन यहाँ तक चला है। मतलब हमको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, बॉडी अपने आप बैक। With the session here. Now I would like to invite Dean Ma'am Ms. Prachi Jindal to offer our guest of honor a memento. Now I would like to call upon National Business School to deliver the vote of thanks. Meditation is the means by which we experience the love, peace and stillness. It is a process of experiencing God's love for ourselves and by taking our attention away from the world outside and focusing it within. A very good afternoon to one and all present here. I am honoured to give vote of thanks on this occasion. I, Dr. Chetna Mahar, take this opportunity to express my gratitude towards our Honorable Chairman Sir Shri R.N. Jindal and Vice Chairman Sir Shri Aniruddha Jindal for the constant support. Very special thanks to our Dean Corporate Affairs, Mrs. Prachi Jindal, for her guidance, her encouragement and her constant support. I would like to thank our Director Sir, Professor Dr. H. Sharma, for his constant guidance and support. I, on behalf of Geeta Rattan International Business School and the entire team of NSS unit, extend a very hearty thanks to the resource person, Shri Abodh Srivastava for giving us his valuable time and providing us his guidance on meditation. Sir, we all were aware of the benefits of meditation, but were not aware of the right method of doing it. Sir, you have guided us the right way and enlightened us. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you all. I thank our honorable guest speaker again. Thank you, sir, for sparing your precious time. Hope your words of value are a life changer for many. And I thank everyone who's present here. Have a delightful day ahead and keep in mind the principles of meditation. Stay safe. Thank you.